Hello friends, welcome again Mission IS. So in this video you will get the most important current affairs of October 2016. The first is Kashmiri Stag IUCN. Recently the IUCN means the International Union for Conservation of Nature declared the Kashmiri Red Stag और इसका दूसरा नाम है हंगुल critically endangered. It has been declared critically endangered. Earlier it was declared near threatened. Earlier it was considered the subspecies of red deer, hence IUCN categorized as least concern. It is one of the 3 critically endangered species in Jammu and Kashmir. इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही मिलती है दाचीगम नेशनल पार्क में. इसके अलावा मारखोर एंड तिब्बतन एंटीलोप भी थ्रेटन लिस्ट में है IUCN की. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इनसाइट. प्रोजेक्ट इनसाइट is an initiative of the Ministry of Finance to widen the tax base by detecting tax evaders using technology. Means Project Insight to detect the tax evaders using technology. Zero defect, zero effect schemes. It was given for producing high quality manufacturing products with minimal negative impacts on environment. And ZED, zero effect, zero impact schemes are aimed to rate and handholds all MSMEs. मतलब to deliver top quality products using clean technology. It will have a sector specific parameters for each industry. The main objective zero defect zero effect स्कीम का ये है कि क्वालिटी प्रोड्यूस करना साथ साथ में इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉमन पीपल भी अफोर्ड कर सके एरोप्लेन की जर्नी. और रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है. और साथ में अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड जो एयरपोर्ट है, जो यूज़ में कम नहीं आते हैं, उनको यूज़ के काबिल बनाना और इस्तेमाल में लाना. और उड़ान will be applicable on flights which cover between 200 km and 800 km with no lower limits set for hilly, remote islands and security sensitive regions. Urja Ganga project. It aims to provide a piped cooking gas. Urja Ganga project. Urja means energy. Pipe cooking gas provide करना. कहाँ से कहाँ तक? From जगदीशपुर to हल्दिया. Jagdishpur in UP to Haldia by 2018, and this pipeline's length is 2050 km. It will include the 5 states including UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal and Odisha. Gender related issue, the World Economic Forum. ध्यान रखो फ्रेंड्स, जो भी कभी भी ऐसी रिपोर्ट के बारे में UPSC अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि रिपोर्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आया, अगर कोई रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो ह्यूमैनिटी से और सोशल से रिलेटेड है, तो ज़्यादातर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है. और जो इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है ना. ये की डिफरेंस है. आप लास्ट ईयर की पेपर्स उठा के देख सकते हो. जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो WD मतलब वर्ल्ड बैंक करता है, और जो ह्यूमैनिटी और सोशल से रिलेटेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. अबाउट ऑटोफैगी. ऑटोफैगी क्या है? ये सेल्फ जनरेशन ऑफ और रीजनरेशन ऑफ सेल. Autophagy is a Greek term for self-eating. It is a fundamental process for degrading and recycling cellular components. Recently, Japanese scientist को इसको नोबेल प्राइज़ मिला है ऑटोफैगी एक्सपेरिमेंट पे. मतलब रीजनरेशन ऑफ सेल और टिश्यूज़. इतना ध्यान रखो, काफ़ी है. अच्छा, बिटकॉइंस. बिटकॉइन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी क्रिएटेड एंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली. बिटकॉइंस का कोई भी कंट्रोलर नहीं है. अभी RBI और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अंडर कंट्रोल इसे इंडिया में कंट्रोल कर सके, लेकिन इसका कोई रेगुलेटर नहीं है. यह वर्चुअल करेंसी है. नो वन कंट्रोल इट. ब्लॉकचेन आर एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट कैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज एफिशिएंटली एंड वेरिफेबल एंड परमानेंट वे. द लेजर itself can also be programmed to trigger transaction automatically. Originally, blockchain is a distributed database that maintains continuously growing list of ordered record called blocks. तो जो बिटकॉइन है
वो ब्लॉकचेन के ज़रिए कंट्रोल की जाती है, मतलब ब्लॉकचेन से कुछ लिंक है इसका. यू कैन गूगल इट मोर अबाउट इट and you can get more information about the blockchain. Recently the Unacademy launched the blockchain. One of the millionaire who became millionaire from the bitcoins recently launched the videos on Unacademy platform. What are P notes? P notes are participatory notes, are overseas derivative instrument that have Indian stocks as their underlying asset. अच्छा, P notes क्या है कि जो पी नोट्स इंडियन डोमेस्टिक, जैसे वी आर इंडियंस, वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन पी नोट्स, वी कैन नॉट इशू. द सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमको पी नोट्स जारी नहीं करके देगी. ये सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए है. कोई फॉरेन में बैठा हुआ लाइका, यूके में बैठा हुआ बंदा हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है ना, और वो सेबी से रजिस्टर है, लेकिन वो उसका ही कुछ शेयर का पार्ट, सपोज उसने 20% मुझे, मैं इंडिया का रहवासी हूँ, इंडिया का सिटीज़न हूँ, मुझे बेच दिया और मैं सेबी से रजिस्टर नहीं हूँ, तो इसको कहते हैं पी नोट्स. दे अलाउ द फॉरेन इन्वेस्टर टू बाय स्टॉक लिस्टेड ऑन इंडियन एक्सचेंज विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड विद सेबी. द इंस्ट्रूमेंट गेन पॉपुलरली एज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. To avoid the formalities of registering and to remain anonymous, started waiting on stock through this route. New urban agenda habitat third, very important. It says the global version of sustainable urbanization for the next 20 years. The new urban agenda was officially adopted at the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development held recently in Quito, Ecuador. अच्छा, एक कि ये न्यू अर्बन एजेंडा हैबिटेट थर्ड की कॉन्फ्रेंस जो है ना, हर 20 साल के बाद होती है, बाय डिकेनियल है, हर 20 साल के बाद होती है, नॉट एवरी ईयर. इससे पहले 1976 में हुई थी, फिर 1996, देन 2016. Kigali Agreement, one of the most important current affairs of that month. 197 countries have struck a new landmark deal at Kigali in Rwanda to reduce the emission of category of greenhouse gases, which leads to hydrofluorocarbon. Its reduction could prevent up to 0.5 degrees Celsius of the global warming by year 2100. Significance: the Kigali Agreement amend the 1987 Montreal Protocol to now include gases responsible for global warming. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था लीगली बाइंडिंग था, लेकिन किगाली एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है ना. रिमेंबर दिस फ्रेंड्स. सो नाउ द किगाली एग्रीमेंट और अमेंडेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर HFC reduction will be binding on countries from 2019. It also has the provision for penalties for non-compliance. Neerdur. Recently, National Environment and Engineering Research Institute NCSIR has developed the Neerdur. अब Neerdur a multi-fuel domestic cooking stove है, जो कि MENRE Ministry of New and Renewable Energy and किसने बनाया है, has been approved and certified by Ministry of recently National Environmental Engineering and Research Institute NERI and CSIR has developed the Neerdur. So India's first green corridor, 114 km long, Manumadurai to Rameshwaram. It is India's first green corridor and पूरा 114 किलोमीटर पे जब ट्रेन रन होगी तो वहाँ पे ज़ीरो डिस्चार्ज ट्रैक पे जो है, मतलब जो भी टॉयलेट के वेस्ट है वो ट्रैक पे नहीं डाले जाएगी, बल्कि बायो टॉयलेट यूज़ होगा. लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है बायो टॉयलेट्स पे. Idea of bad bank. Bad bank would be set up as a separate entity that would buy the NPAs, non-performing asset, from other banks to free up their books for fresh lending. है ना. You can see more about the bad banks in our Mission IS economic survey video. Public debt management cell भी इससे related है. Public Debt Management Agency is a proposed specialized independent agency that manages the internal and external liabilities of the central government in a holistic manner, and it will only have advisory function to avoid conflict with the statutory function of the RBI, and it will plan government borrowing as well as manage its liabilities.
अच्छा, वर्ल्ड लार्जेस्ट मरीन नेशनल पार्क, रोज सी अराउंड एंटार्कटिका। अब कल्चर का कुछ देख लेते हैं। हरिकथा, हरिकथा द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ हरिकथा, कथा मीन्स स्टोरी, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन हिंदुइज्म। हरिकथा को कभी क्वेश्चन बन गया तो इससे आप याद रख सकते हो। हरि, एच फॉर हिंदू, कथा फॉर स्टोरी, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन हिंदुइज्म। द मेन एम ऑफ हरिकथा इज टू इम्बाइब द राइटियसनेस and truth in the minds of the people. It has its root in the Kirtan tradition of Maharashtra, है ना, स्टेटमेंट बन सकते हैं। It has roots in Kirtan tradition of Karnataka, no, Maharashtra. It includes music, storytelling, dance, drama and philosophy. Alpana folk, most important. Alpana is a folk art of Bengal, was mainly done on the floor and the wall. अल्पना फोक आर्ट इज़ बंगाल में मशहूर है। इज़ अ फोक एंड डन ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द हाउस। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर इंटैक्ट हैज़ जॉइन हैंड्स विद द द्रचिया फाउंडेशन टू रिव्यू द लॉस्ट फोक आर्ट ऑफ बंगाल। अल्पना, अल्पना पे पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ फोक आर्ट ऑफ द बंगाल डन ऑन द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ द हाउस। वर्मिन इशू, एनी एनिमल डिक्लेयर्ड एज अ वर्मिन कैन बी kill or hunted down without inviting any gentleman, like a crow है, और आपके घर में फिरने वाले चूहे हैं, रैट्स है, माउस है, इनको हम मार सकते हैं। ये कोई इस पे कर, उसको मारना भी पेनलाइज नहीं है, तो इनको वर्मिन स्पेसिस कहते हैं। तो द सेंटर अप्रूव द कूलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द नीलगाय, वाइल्ड बोर, रेसस मंकी within specified territories of the Uttarakhand, Bihar, Himachal Pradesh by declaring them vermin under the Wildlife Protection Act 1972। अच्छा, वर्मिन स्पीसीज जो है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 6 में रखे गए हैं। शेड्यूल 6 नो शेड्यूल 4 में रखा गया है इसे। पॉइंट नेमो, द पॉइंट ऑफ inaccessibility of the earth, the farthest point from land, also known as the oceanic pole of inaccessibility, is nicknamed as a Point Nemo, meaning no one in Latin word, first discovered in 1992। अच्छा, Indian roller bird, most important question from that month, from environment point of view, क्वेश्चन बन सकता है environment पे। Indian roller bird, the increased poaching of Indian roller, a schedule 4 protected bird, is making the species go endangered। इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है WPI के। द इंडियन रोलर और नीलखंड, इंडियन रोलर का दूसरा नाम क्या है? नीलखंड। इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ वेरियस स्टेट्स लाइक कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। 4 स्टेट का, 4 राज्यों का ये स्टेट बर्ड है। एंड इसका इट इज़ डिस्प्लेड ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल इन तेलंगाना। एंड द बर्ड इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सॉरी, वर्मिन स्पेसीज़ के बारे में कहा था। वर्मिन स्पेसीज़ शेड्यूल 5 में है। द न्यू स्पेसीज ऑफ पीका डिस्कवर्ड, इट इज़ अ मैमल बिलोंगिंग टू द रैबिट और हेयर फैमिली फाउंड इन सिक्किम। स्मूथ कोटेड ओटर के बारे में तो बता ही चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। Now friends, Mission IS is going to post most important expected 360 questions for upcoming preliminary. As you know, Mission IS is known for making high quality videos on MCQ. As friends, आप जानते हो कि Mission IS के क्वेश्चन कैसे रहते हैं। आपने, अगर आपको नहीं पता है तो आप Mission IS के YouTube चैनल पे जाके सारी वीडियो देख सकते हो। And these MCQs will definitely pave the way for your success in upcoming preliminary 2017. And this MCQ has been prepared by after analyzing last 3 years paper which consists both current affairs and statics. और हमारा prediction है यहाँ पे 202 गया है, सॉरी, तो टोटल 360 क्वेश्चन रह गए, जिसमें से हम कर रहे हैं कि नियर 12 to 15% क्वेश्चन में आस्क, मतलब 45 to 54 क्वेश्चन। एंड आवर प्रेडिक्शन, हमारे पास कोई मिराकल नहीं है और कि जो जादू से हम बता सके ये क्वेश्चन आएगा, कि हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे सारे क्वेश्चनों में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
डेफिनेटली पूछा जाएगा। उससे लिंक हो बहु क्वेश्चन वो नहीं रहेगा, बल्कि उसके लिंक रहेगी। यानी आप अगर सारे क्वेश्चन उसके स्टेटमेंट पढ़ोगे, समझोगे 1 से 2 बार, तो आपको ज़रूर हेल्प करेगा और आप 45 to 50 क्वेश्चन निकाल सकते हो आराम से। एंड वी विल मेक वीडियोज़ ऑन 24 जून। हम 24 जून को फिर एक वीडियो बनाओगे, आपसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे कि हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन आए। एंड दिस 360 MCQ विल डेफिनेटली पेव द वे फॉर योर सक्सेस टू क्वालिफाई फॉर मेंस 2017। एंड दिस MCQ विल नॉट बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब, इट विल बी गिवन टू यू थ्रू द व्हाट्सअप। आपको व्हाट्सअप पे दिया जाएगा, आप यूट्यूब पे हम इसे पोस्ट नहीं करेंगे। सो नाउ and you can register now before 12th June 2017 to WhatsApp number 9270241912 and you will get this high quality MCQ and MCQ on 14 June। आप निश्चित रहिए, आपको ये MCQ 14 जून को मिल जाएगा। हमारे 360 पैकेज में से हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है। विद रेफरेंस टू स्पेस ट्रैपिस्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पॉज करके आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? अभी ट्रैपिस्ट न्यूज़ में था बहुत, है ना। इट इज़ अ ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट एंड मार्स जुपिटर्स, थर्ड ऑप्शन टेलस कमेट डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, डी ऑप्शन अल्ट्रा कूल डॉफ स्टार दैट होस्ट पोटेंशियली हैबिटेबल अर्थ साइज प्लैनेट। आंसर डी इज़ राइट। Option D is right. Recently, NASA Kepler mission has provided more information on the ultra-cool dwarf star TRAPPIST that consists 7 potentially habited Earth-sized planet. TRAPPIST first system is the first known star system containing 7 Earth-sized planets. Next question: which of the following agencies is the central coordinating authority for cleaning up efforts after an oil spill at sea in India? 2-3 महीनों पहले चेन्नई में एक ऑयल स्पिल हो गया था, तो उसे क्लीन करने में न्यूज़ में बहुत था। नेशनल कोस्ट गार्ड, बी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, सी सेंट्रल CPCB एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। आंसर इज नेशनल कोस्ट गार्ड। सो लुक, वी हैव प्रोवाइडेड ऑल्सो फुल लेंथ explanation also with this question. The National Oil Spill Disaster Contingency Plan of 1993, Director General of Coast Guard is the central Director General of Coast Guard is the central coordinating authority for cleanup effort by an oil spill at sea. Next question देख लेते हैं। The New York Declaration often seen in news in the context of United Nations is related to A. Tackling international terrorism, B. Restricting the production and use of persistent organic pollutants, C. Containing nuclear arms proliferation, and D. Safeguarding rights of refugees and migrants. Its answer is B. Look here, explanation. Next question: which of the following are the tributaries of river Ganga? 1. Son, 2. Gandak, 3. Betwa. Select the correct answer using the code given below. अक्सर ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। नाउ लुक एट द ऑप्शन। सोन है ना, गंगा की ट्रिब्यूटरीज पूछा हुआ है। अब इसमें सोन एंड गंडक का नाम, द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2, मतलब सोन एंड गंडक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, बट द बेटवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। सो इफ वी एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन B, C, D, answer is A. Only सो ऑप्शन थर्ड कहाँ का है हमको देखना है। ऑप्शन थर्ड C और D में है, तो हमारा 50% हमको अब पता करना है कि 50% हमारा हाथ में है कि 50% हम अप्रोच हम राइट एलिमिनेट करके आंसर राइट ला सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट बोथ द सोन एंड गंडक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। So the Yamuna, Ramganga, the Ghagra, the Gandak, the Kosi and Mahananda and the Son are the important tributaries of the Ganga river, and the river Chambal and Betwa are the important tributary of Yamuna. Next question: the term green mufflers often seen in news refers to A, B, C, D. Select the correct answer. It's the answer green, मतलब it is related to environment. Rows of green plants grown to reduce noise pollution, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट्स नॉइज़ को कम करते हैं। आंसर इज ए।
The green mufflers are barriers grown near noisy places to reduce the impact of noise. Normally 4 to 5 rows of green plants are grown near the noisy places like highways or industrial areas. Next question, rosewood and mahogany are species of associated with which of the following types of forest? रोजवुड एंड महोगनी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर डेफिनेटली दे सकते हो. इसका आंसर है ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो फ्रेंड्स, हाउ वी प्रेडिक्ट कि दिस क्वेश्चन में आस्क, हम ये नहीं कह रहे हैं कि टोटली 100% सेम क्वेश्चन आ सकता है, नहीं, लिंक ज़रूर होगी. आप वो 360 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ये. लाइक हम यहाँ देखते हैं, यूपीएससी प्रिलिमिनरी 2017 स्ट्रेटजी वी हैव प्रिपेयर्ड दिस के सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी. अभी अक्सर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स, गोदावरी 2015 में गोदावरी पे पूछा, ब्रह्मपुत्र पे लास्ट ईयर 16 में पूछा, तो इस साल हो सकता है कि कावेरी पे. माई टास्क दिस ईयर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कावेरी, इंडस बहुत न्यूज़ में था, है ना. तो आपको इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं आप एक गूगल कर सकते हो, मेन रिवर इंडस, कावेरी, यमुना, है ना, ये 3-4 रिवर की ट्रिब्यूटरीज़, 5-6 रिवर ट्रिब्यूटरीज जो भी हो उसकी गूगल करके नोट डाउन कर लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. सोर्सेज आर इन एनसीईआरटी 11 एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी. इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन लास्ट ईयर क्या था, स्टेजेस ऑफ बिल पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा और लैप्सेस वगैरह. सो दिस ईयर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर्स, है ना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट काउंसिल, नीति आयोग पे क्वेश्चन हो सकता है. पार्लियामेंट्री कमेटी पे तो हर साल होता ही है. नीति आयोग पे कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2 सालों से. इंडियन हिस्ट्री, स्वदेशी मूवमेंट, देखिए इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1905 से लेकर 1947 तक के अगर आप पढ़ लिए तो आप डेफिनेटली आपने समझ ली कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी कवर कर ली. सो अपकमिंग एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वॉवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्लान, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म, है ना. क्योंकि अजंता का क्यों सिर्फ उसमें बुद्धिज़्म के लिए फेमस है, बुद्धिज़्म के देवता हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे एलोरा में तो एलोरा में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म तीनों मिलते हैं. लाइक दिस डिफरेंस और सिमिलरिटी में आस्क. अच्छा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, एसडीआई इंटरनेशनल रिपोर्ट सच एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी लास्ट ईयर पूछा था, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक आउटलुक, है ना, सॉरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश बाय द IMF. So this year may ask International Logistic Index published by World Bank and Inclusive Development Index. जैसे कि मैंने बताया कि सोशल और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, और इकोनॉमी से रिलेटेड है तो वर्ल्ड बैंक. जनरली आप जितनी भी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एक सिमिलरिटी, एक लॉजिक मिल जाएगा इसके बीच में. करंट अफेयर्स वाईफाई पे क्वेश्चन आया था, इस साल एक्स्ट्रा वाईफाई पे आ सकता है. 1 बेल्ट 1 रोड पे लास्ट ईयर आ सकता था, इस साल 1 डैश लाइन पे आ सकता है. SDG पे लास्ट ईयर आया था, इस साल MDG और SDG को थोड़ा मॉडिफाई करके आ सकता है. लास्ट ईयर अटल पेंशन पे था तो इस साल वरिष्ठ पेंशन पे हो सकता है. ड्रिप इरीगेशन लास्ट ईयर था तो इस साल स्प्रिंकल इरीगेशन पे हो सकता है. और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना बोथ अर्बन एंड रूरल. फ्रेंड्स, वी आर चार्जिंग वेरी लिटिल अमाउंट. 250 रुपीज़ इज़ नॉट वेरी मच अमाउंट. 250 में आप प्रीलिमिनरी पास भी हो सकते हो और लाख रुपए दे के आप पास नहीं भी हो सकते हो. लाइक हाईली अगर आप दिल्ली जाते हो, कोचिंग क्लास सब फीस भरते हो, वहाँ की लाखों रुपीस पे करते हो, आपको क्या मिलता है? मेनी aspirants spend their valuable time in Delhi and they didn't get anything. But we must know UPSC का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन पर्पस इज़ टू फिल्टर द नॉन सीरियस कैंडिडेट्स. इस साल 15 लाख से ऊपर कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं 18 जून को, लेकिन कितने पास हो गए? ओनली 12 to 15,000, मतलब लेस देन 1%. 99% लोग फेल हो जाएंगे. द रीज़न बिहाइंड दैट,
UPSC want the IS aspirant or IS must be फार साइटेड, जो कि दूर अंदेश हो, जो कि सही फैसला करे, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।